वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप 1। तो सबसे पहले तो यही चीज़ आती है कि वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है। देखिए एक्चुअली वर्ड जैसे कि सामने लिखा हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम्स आर द मैथ क्वेश्चंस प्रेजेंटेड विदाउट द सिंबल ऑफ अलजेब्रा और अर्थमेटिक्स। मतलब कि कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दिया होगा, उसके अंदर लेकिन देयर वुडंट बी एनी नंबर और एनी सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स, टोटली वर्ड की फॉर्म में एक सिचुएशन प्रेजेंट की गई होगी। व्हाट यू हैव टू डू, you have to convert it into mathematical equation, and then you have to solve that to find out the answer. And actually these type of questions are very easy to solve. All you have to do, you have to look for the chance where you can create the equation and then you have to solve it. So let's understand this with few examples. The first is the difference between the numbers and its 3/5 is 40. Then what is the number? Okay, so क्या है कि the difference between the number and its 1/5 is 40. So let's assume that the number is x. चलिए, तो अब इक्वेशन क्या बनता है? The difference between the number and it, actually it's 3/5. Number is x minus its 3/5, यानी कि x का और 3/5, and this is equal to 40. That's it. So इसे जब हम सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 2/5 x इज इक्वल टू 40, और सिंपली x इज इक्वल टू 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, एंड व्हेन यू सॉल्व इट you get it like 100. So the answer is 100. Next is, if the number is decreased by x and then divided by y by 7. Let's say the number is x, this number is decreased by 5 and then is divided by 7. This becomes equal to 7. So what would be the resultant if the number, if 4 is subtracted and divided by 10? चलिए ये तो हो गया, तो पहले यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं x का वैल्यू। x माइनस 5 इज इक्वल टू 49 और x इज इक्वल टू 54। चलिए, सेकेंड कंडीशन क्या है? First half is complete and the second half is, what would be the result if 4 is subtracted and then divided by 10? यानी कि अगर x minus 4/10 किया जाए तो आंसर क्या आएगा? तो वेरी सिंपल, x का वैल्यू हमें पता चल गया, इट्स 54 minus 4/10 comes out to be 50/10, which is nothing but 5. So the answer is D, 5. Next is, if 1/3 of 1/4 of the number is 10, 1/3 of the 1/4, बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज दैट। 1/3 of 1/4, लेट्स से नंबर इज x, इस x का 1/3 इज x/3, और ओके लेट मी राइट इट वंस अगेन। 1/3 of 1/4, x इसका 1/3 और इस पूरे 1/3 का फिर से 1/4 इज 10, यानी कि x/12 इज 10, और वी कैन से x इज इक्वल टू 120. ओके, देन द सेकेंड पार्ट इज दैट देन 2/5 ऑफ द नंबर इज व्हाट? यानी कि जो अपना x है उसका अगर 2/5 किया जाए तो आंसर क्या आएगा? एंड इट इज़ नथिंग, वी नो इट्स 120 इंटू 2/5, विच कम्स आउट टू बी नथिंग बट 240/5, विच इज़ 48. सो द आंसर इज नॉट गिवन हेयर, सो करेक्ट आंसर होगा नॉन ऑफ दीज. ओके, अ नंबर इज ट्रिपल एंड देन एडेड 3, यानी कि लेट्स से द नंबर इज x, उसको हमने ट्रिपल किया 3x, उसके अंदर हमने फिर 3 ऐड कर दिया. ओके, इफ द रिजल्टेंट इज डबल, यानी जो भी नंबर निकला उसको डबल किया जाए, यानी कि इसको हमने डबल कर दिया, देन इट बिकम्स 30. तो हमें x निकालना है. इट्स सिंपल, 6x प्लस वी गेट 6 इज इक्वल टू 30, और you know very well that it's nothing but x plus 1 is equal to 5, or x is equal to 4.
So the answer is x is equal to 4. Okay. Then the next one is that क्या पूछा गया है, 3/5 of a number is 40. x is the number, let's say इसका 3/5 okay is 40 more than 1/3, यानी कि जो रिजल्ट x बाय x का जो 3/4 है वो उसके 1/3 से 40 ज़्यादा है. So this is the equation which we get, and when we solve it we get 3x by 5 is equal to 40 plus x by 3. थोड़ा सॉल्व करके इसे लिख दिया गया है. On further solving what we get, 3x by 5 minus x by 3 is equal to 40. इस पोर्शन को हम यहाँ ले आए हैं. And when we solve it further what we get is x बाहर ले लिया गया, चलिए कॉमन ले लिया है मैंने. 3/5 minus 1/3 is equal to 40. When we solve it becomes x 9 minus 5 by 15 is equal to 40. On further solving we get it like x into 4 by 15 is equal to 40, or x is nothing but 40 into 15 by 4, and this is 150. So 150 is the answer. Next is when 20 is subtracted from a number it reduces to 7/12 of the number. Let's say the number is x. इसमें से जब हमने 20 कम किया तो ये किसके बराबर हो गया, x के 7/12 के बराबर. ठीक है. So all what we have to do is to just solve it. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे it will become 12x plus it's minus, it's 12x minus 240 is equal to 7x. When we solve it it's like 5x is equal to 240, और simply x is equal to 48. तो जो सम है 2 डिजिट का हमें क्या निकालना है आंसर, व्हाट इज द सम ऑफ द 2 डिजिट्स. इस नंबर की 2 डिजिट, एक डिजिट है 4, दूसरी है 8 एंड द सम इज 12 विच इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, सो ई नॉन ऑफ दीज. नेक्स्ट इज इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 इट रिड्यूस्ड बाय 43. व्हाट इज द नंबर, यानी कि अगर x नंबर है इसे मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा x माइनस 43, यानी कि अपना जो नंबर था उससे 43 कम हो जाएगा. एंड व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट इट लाइक x इज इक्वल टू 3x माइनस 102. दिस इज डन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. एंड व्हेन वी सॉल्व इट कम्स आउट टू बी 2x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 102, और ज़्यादा अच्छे से बोला जाए तो x इज इक्वल टू 102/2 which is nothing but 51. So 51 is the answer here. Next is a number is a number whose 1/4 part is increased by 5 is equal to the third part diminished by 5. इसका मतलब क्या है, देखिए एक नंबर है x, इसका 1/4 पार्ट और इसे हमने इंक्रीज कर दिया 5 से, तो ये इक्वल हो जा रहा है x के 1/3 पार्ट के -5. दिस इज द इक्वेशन विच इज फाउंड. ओके, व्हेन वी सॉल्व इट व्हाट वी गेट बाय ऑब्वियसली चले पहले से हम लिख ही लेते हैं. इट विल बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. व्हाट वी गेट इट बिकम्स x प्लस 20/4 is equal to x minus 15/3. On rearranging further cross multiplication what we get 3x plus 60 4x minus 60, और it's minus x is equal to minus 120, और x is equal to 120, so the answer is 120. Next is the difference
between the two numbers is 1/3 of the larger number. If the smaller number is 48, the larger number is what? Let's assume that the larger number is nothing but x. अब क्या करना है, तो the difference between two digit is 1/3. Let's say कि एक बड़ा नंबर तो x है, तो difference would be x minus 48 and not 48 minus x, क्योंकि जो बड़ा है उसी में से डिक्रीज करेंगे. It would be x minus 48. The difference between the two number is, जो भी आया, it is 1/3 of the large number, यानी कि x minus 48 is 1/3 of the x. Okay, and when we solve it by cross multiplication, what we get 3x minus 144 is equal to x, or 2x is equal to 144, or x is equal to 72. So the answer is A, 72. The product of the two natural numbers is 19. दो numbers हैं, दोनों natural numbers हैं. Let's say one is A, other is B. तो क्वेश्चन क्या कहता है कि उनका प्रोडक्ट यानी A into B is 19. अब देखिए 19 इज़ अ प्राइम नंबर और A और B दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो एक ही पॉसिबिलिटी इसके लिए बनती है कि A जो है वो 1 हो और जो B है वो 19 हो, या फिर वाइस वर्सा. ठीक है. अब द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना हुआ? ओके, तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स, यानी कि ए स्क्वायर और उसका इनवर्स, यानी 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज, पता लगाना है हमें कितना होगा. सो लेट्स से डू इट. क्या होगा ये? इट वुड बी, अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए, इट वुड बी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इनका अगर हम एलसीएम लेंगे, इट वुड बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ठीक है. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ज़रा हम ए और बी की, जो हमने निकाली है 1 and 2. ओके, तो इट वुड बी 1 स्क्वायर, ओके, इट वुड बी 19 स्क्वायर plus 1 square divided by 1 square 19 square. ठीक है. So this comes out to be, after solving, as 362 divided by 361. So the correct option is B, 362 by 361. The next question is, the numbers are in the ratio 3:4:5 and their average is 24. Now this is an interesting question. Let's assume that the common factor is x, और अगर देखिए रेशियो जो है वो 3, 4 और 5 है, तो नंबर्स क्या हो सकते हैं? 3x, 4x एंड 5x, और इनका एवरेज 24 है, यानी 3x प्लस 4x प्लस 5x डिवाइडेड बाय 3 इज 24. अच्छा, अब इन्हें ज़रा सॉल्व करते हैं हम, तो क्या आता है? इट कम्स आउट टू बी 12x बाय 3 इज इक्वल टू 24, और 12x इज 72 और x इज इक्वल टू 6. ठीक है. तो हमें क्या निकालना है? लार्जेस्ट नंबर. तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 5x, which is 5 into 6, which is 30. So the correct option is B, 30. Next is, the numbers are in ratio, again the same type of question is it, 4:5:6, यानी कि 4x, 5x and 6x. लेकिन अब की बार इनके प्रोडक्ट की बात की गई है, यानी कि 4x into 5x into 6x is equal to 7680, और this comes out to be 120x cube is equal to 7680, और x cube is equal to 7680 divided by 120, 0 cancel out, and we get 64 as the product, as the result, and x cube is equal to 64 or x is equal to 4. So here
एक्चुअली द लार्जेस्ट नंबर यानी फिर से 6x की बात की गई है. इट इज़ 6 into 4 which is 24. So correct option is B. Next we have that sum of 1/3 and 1/2 of a number. एक नंबर है x, उसका 1/3 प्लस में x का 1/2. This exceeds 2/3 of the number यानी कि 2/3 of x by 5. ठीक है, this is the equation which we get, and when we solve it, it would be like 2x plus 3x divided by 6, which is equal to again 2x plus 15 by 3. We cancel out, we get it like 2. It would be 2x plus 3x by 2, which is equal to 2x plus 15. Okay, and on further cross multiplication we get it like 2x plus 3x is equal to 4x plus 30, or 5x minus 4x is equal to 30, or x is equal to 30. So correct option is A. Now these were the questions in which we had to make equations. कुछ अब जो अपने वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो कुछ अलग तरीके से भी पूछी जाती हैं अक्सर एग्ज़ाम में, एंड दैट इज़ डाटा सफिशिएंसी, इन विच हमें करना क्या होता है कि एक स्टेटमेंट, एक मतलब क्वेश्चन दिया होगा, आप सब कह लीजिए एक स्टेटमेंट दी होगी, और उसके बाद में 2 सब स्टेटमेंट्स दी होंगी, और हमें उन तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है केयरफुली, और हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट, जो एक मेन क्वेश्चन की 2 स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी, या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, उन्हें हमें देखना है, और हमें ये देखना है कि क्या हम उन दोनों स्टेटमेंट्स को यूज़ करके क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, या आंसर देने के लिए सिर्फ कोई एक स्टेटमेंट ही काफ़ी है, या दोनों काफ़ी है, या दोनों में से कोई भी काफ़ी नहीं है. इसके बेसिस पे हम अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. अगर जो स्टेटमेंट 1 है उसका डाटा, दैट इज़ इफ़ द डाटा गिवन इन स्टेटमेंट 1 इज़ sufficient to answer the question, whereas the data given in statement 2 alone is not sufficient to give the answer of the question, then option would be A. यानी ऑप्शन ए का मतलब ये है कि 2 स्टेटमेंट्स हैं 1 और 2, उसमें से सिर्फ हम स्टेटमेंट ए से ही क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, जबकि स्टेटमेंट 2 को अगर हम खाली यूज़ करें तो हम आंसर नहीं कर सकते. वहीं ऑप्शन बी उल्टा है, अगर जो स्टेटमेंट 2 है सिर्फ उसी को पढ़ के हम आंसर दे देंगे, और लेकिन खाली स्टेटमेंट 1 गिवन हो तो हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, देन द ऑप्शन वुड बी बी. नेक्स्ट इज ऑप्शन सी. अगर हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में से किसी भी एक स्टेटमेंट को यूज़ करें और दोनों अलोन आर एबल टू गिव द आंसर, स्टेटमेंट ए पढ़ के भी हम आंसर दे सकते हैं खाली, स्टेटमेंट बी खाली पढ़ के भी आंसर दे सकते हैं, देन द ऑप्शन वुड बी सी. अगर दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है, देन द आंसर वुड बी डी. और अगर कभी ऐसा हो कि हम दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आंसर नहीं कर सकता, लेकिन हम जब दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में मिला दें तो मिल करके एक नया स्टेटमेंट बनेगा विच इज़ नाउ सफिशिएंट टू गिव द आंसर. दैट मीन्स इफ द डाटा गिवन इन स्टेटमेंट 1 and 2 आर बोथ नेसेसरी टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, देन द ऑप्शन वुड बी E. Now this seems to be quite interesting, and let's see a few questions of this type. The first is, what is the 2-digit number? कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो अब जरा ऑप्शंस देखते हैं, जो स्टेटमेंट देखते हैं. स्टेटमेंट 1 is that the difference between the 2-digit number and the number found by interchanging the digit is 18. चलिए लेट्स से कि जो नंबर है, जो 2 डिजिट्स हैं वो x और y है, ठीक है. तो नंबर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर, दैट इज रिटन बाय 10x प्लस वाई. ऐसे ही तो रिप्रेजेंट किया जाता है ना. अगर मान लिया 48 है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, विल राइट इट लाइक 10 into 4 plus 8, ठीक है. तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ 2 डिजिट नंबर, सो 10x प्लस वाई. तो जो स्टेटमेंट 1 है, अकॉर्डिंग टू दैट द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग, यानी कि
10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x। डिजिट्स को हमने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो द आंसर इज 18। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। व्हाट वी गेट, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। चलिए ये एक इक्वेशन तो मिला, लेकिन अब इस इक्वेशन से क्या होगा, कुछ आंसर निकला क्या, नहीं निकला। सो दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट एक्चुअली सफिशिएंट टू गिव द आंसर। स्टेटमेंट 2 देखते हैं क्या कहता है। स्टेटमेंट 2 ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट इज 2, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये तो सेम स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है दैट इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। सो विल से ऑप्शन 4, दैट इज इफ द डाटा इन बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो हुआ दैट इज डी। ओके, डी वुड बी द आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टू डिजिट नंबर। सेम टाइप का क्वेश्चन नो, ठीक है। और ये क्या कहता है कि स्टेटमेंट A1 says that the difference between the two digit number and the number found by the interchange is 54. The same way, यानी कि 10x plus y minus 10y plus x, ठीक है। हेलो, ओके। 10x plus y minus 10y plus x is equal to 54. Now what does it mean? That again इनको जब हम सॉल्व करेंगे we'll get 9x minus 9y is equal to 54 और x minus y is equal to what? 6, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, लेट्स सी। स्टेटमेंट 2 says that the digits at unit place is less than at tens place by 6. यूनिट प्लेस पे हमारे पास में y है, टेंस प्लेस में we have x। तो ये कहता है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अगेन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। बोथ द इक्वेशंस आर सेम, वी आर not able to answer the question using any of the two statements or using both of the two statements। तो इसका जो आंसर है वह भी क्या है, डी। चलिए इस क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग जो देयर टू नंबर्स, ठीक है, द फर्स्ट इज ए एंड द सेकंड इज बी। इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स कि जो यूनिट प्लेस पे जो है पहला नंबर ए है, यानी कि यूनिट प्लेस पे ए है एंड टेंस प्लेस पे बी है। सो द नंबर इज एक्चुअली 10b प्लस ए। एंड फ्रॉम द स्टेटमेंट 1 इट सेज दैट दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 23 बाय अ नंबर n विच कुड बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। चलिए स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि a प्लस बी इज 11 और our a is 11 minus b. Substituting this value into the first equation, what we get, 10b plus 11 minus b is 23n और 9b plus 11 is equal to 23n और b जो है that is 23n minus 11 बाय 9, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये एक 2 डिजिट नंबर है तो ऑब्वियसली b का जो वैल्यू है वो 1 to 9 के बीच में ही कुछ होगा, ठीक है, 0 भी हो सकता है। अब और n का जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ n दैट इज आइदर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम n की वैल्यू को 1 माने, सो फॉर n इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ b इज 23 minus 11 by 9 which is equal to actually 12 by 9 which can't be the value of b. Similarly n is equal to 2 के लिए जो b का वैल्यू निकल करके आएगा that is like 58 by 9 again which can't be the value of b. Similarly for
n इज इक्वल टू 3 जो वैल्यू ऑफ b है, ओके n इज इक्वल टू 3 के लिए इट इज़ 58/9, n इज इक्वल टू 2 के लिए द वैल्यू ऑफ b इज इट वुड बी लाइक 35/9 विच अगेन कांट बी द वैल्यू ऑफ b। तो लेकिन अगर n इज इक्वल टू 4 है तो उसके लिए जो b का वैल्यू निकल करके आएगा दैट वुड बी 92 माइनस 11/9 विच कम्स आउट टू बी 81/9 विच इज़ नथिंग बट 9। ठीक है, तो ये तो ठीक अप्रोप्रिएट वैल्यू है। तो जो b है वो 9 है, तो फिर जो a होगा दैट वुड बी 3 एंड द डिजिट वुड बी 93। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें दोनों डिजिट्स का यूज़ करना, दोनों स्टेटमेंट्स का यूज़ करना पड़ा। दैट मीन्स both the statements are required or necessary to answer the question. That means इसके लिए जो ऑप्शन है that would be E. Option E is more appropriate, that both the statements are required to answer the question. Next is that if the sum of the two digit is 12, दो डिजिट हैं, ठीक है, उनका जो सम है वो 12 है। लेट्स से स्टेटमेंट A के अकॉर्डिंग x और y है वो दोनों x प्लस वाई इज़ 12 और उनका जो रेशियो है दैट इज़ x अपॉन y इज़ नथिंग बट 3। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो अपना x का वैल्यू निकल करके आएगा दैट वुड बी 3y। इनकी वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ रखें तो इट इज़ 3y प्लस y इज इक्वल टू 12 और 4y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 3। इफ y इज इक्वल टू 3 देन x वुड बी 12 माइनस 3 दैट इज, यस बताइए, 8। इज इट 8? नो, इट्स 9। ठीक है, तो हो गया आंसर। तो ठीक है, द आंसर इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। तो ठीक है, हमने इसका आंसर तो कर दिया। स्टेटमेंट 1 से वी आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट्स सी अबाउट स्टेटमेंट 2। ठीक है, स्टेटमेंट 2 से क्या हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट यानी कि एक्स वाई इज 27 और अगेन क्वोशंट यानी फिर से वही x अपॉन वाई इज 3। ठीक है, चलिए देखते हैं x अपॉन वाई या y अपॉन x, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, व्हेन वी सॉल्व इट अगेन क्या निकल करके आएगा? x इज इक्वल टू 3y, वैल्यू यहाँ रख दीजिए। इट्स अगेन 3y इंटू y इज 27 और 3y स्क्वायर इज 27 और y स्क्वायर इज 9 और y इज इक्वल टू 3। ठीक है, देन x इज नथिंग बट x की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी? x वुड बी, बताइए, फ्रॉम दिस इक्वेशन 27/3 9। तो इससे भी आंसर हो गया। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम क्या स्टेटमेंट यूज़ करें, ठीक है, वी कैन आंसर बोथ, वी कैन आंसर दिस यूजिंग बोथ द इक्वेशन, आइदर इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। सो इसका जो ऑप्शन है दैट इज इट कि द data in either statement A alone or in the statement B alone are sufficient to answer the question. ठीक है, तो इसके लिए the option is C. What is sum of the two digit number? What is sum of the two digit number? ये क्वेश्चन है और स्टेटमेंट 1 कहता है that the ratio between tens digit and the units digit of the number is 2:1. यानी कि इफ़ इट इज़ 10x प्लस वाई लेट्स से, तब x अपॉन वाई इज़ 2/1 और x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, यहाँ वैल्यू अगर हम रखेंगे तो विल गेट इट्स लाइक 20y प्लस y। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ इससे तो। ठीक है, इससे तो आंसर नहीं निकला। वी आर गेटिंग अ सिंपल इक्वेशन, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग एल्स। ठीक है, बट जो स्टेटमेंट बी है और स्टेटमेंट 2 है वो क्या कहता है? वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 32, यानी कि
x इंटू वाई इज़ 32, यानी कि x इज इक्वल टू 32 अपॉन वाई। ठीक है, इससे भी कुछ नहीं निकलता है, नथिंग। और अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट भी कर दूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग, 32 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y, और 32 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, और y इज इक्वल टू 16y स्क्वायर, एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ से तो आंसर आ गया। एंड इफ y इज 4 तो x कितना होगा, 32/4 और 8। तो देखिए, एंड द 2 डिजिट नंबर फिर क्या होगा, दैट वुड बी 10 इंटू 8 प्लस 4, which is 84. So we are able to answer this question using both the statements. That means the data given in both the statements 1 and 2 are required to answer the question. ठीक है, so this is actually our last option, E. I hope these questions were clear to you and you were able to understand the concepts clearly. Thank you.